देश में सारे भाई खाते हैं। अभी आपके सामने बताऊंगा सारा मैं। A few moments later. ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। सेक्स, ड्रग्स एंड गैम्बलिंग। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ चोर भी न हो, जहाँ भ्रष्ट भी न हो, बस आपका राज चले। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? इस बीच बड़ी खबर आपको ये भी बता दें, पहले खबर आई थी कि 18 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन अब कुल मिलाकर 83 यानी 45 पुलिसकर्मी प्लस 18 43 45 पुलिसकर्मी प्लस 18 43 83 पुलिसकर्मी 63 पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पर घायल हुए हैं। Shri Hanumantan Rao, 3 minutes, please. Sir, I have been a member of the Rajya Sabha since 2004, 2 terms. My term is now coming to end. I have very memorable, glorious moment in this house, which I can be proud of. For this, I especially thank my leader, late Srimati Sonia Gandhi ji. Srimati Sonia Gandhi ji. And Indira Gandhi ji, Sri Rajiv Gandhi ji, and party president Srimati Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi. Sir, I always fought for the weaker section of people and I have been In the forefront of any issues are concerning OBC minorities and SC, sir. As the convener of the OBC forum, OBC MPs have been taking out and pursuing the important issues which the government concerning the welfare of the OBCs. I am thankful to the UPA chairperson Srimati Sonia Gandhi ji for her initiative on this. No, sit down, sit down, sit down. I will continue Sit and down, show sit that what is down. Hanumantan Rao. Please sit down. OBC in the country is the setting of the parliamentary committee on welfare OBC in 2012. Which I thank to my leader Sri Rahul Gandhi ji for his Timely initiative and support on this issue. Thank you. however. Please sit down. There are still some issues which have been fighting and we have achieved of giving constitutional powers for NCPC, reservation in private sector, removal of criminal and also reservation for jury. Thank you. Sir, in jobs and Your time is up now. education. Close. Sir, I I told him, sir, because I should get 5 minutes. No, sir. you What will the- not sir, get 5 minutes. sir, Sorry, sir. there are other SCST speakers. Commission should be also given constitutional power for address. Sir, But the don't OBC. read a speech. Sir, Liberalization and globalization unemployment has been the Please sit down. reservation in weaker section. Thank you. Classes, भाई क्या कर रहे हैं? representation for BC services. देखिए, आप यहाँ- What is personal Please finish. NCPC there? Report submitted to the Parliament government recommendation to removal of the criminal. Where This is will the not go on reservation record. durable Last OBC? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन हालात किस तरीके से नाजुक बने हुए हैं सिंघू बॉर्डर पर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। किसान दाम निगोशिएट नहीं कर पाएगा। और तीसरा कानून, सबसे अजीब कानून, कि किसान अपनी कठिनाई को कोर्ट नहीं ले जा सकता। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, NIA का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए। और आज जो हो रहा है शंभू बॉर्डर पे, जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है। और आज जो हो रहा है शंभू बॉर्डर पे अरविंद जी, आपका दावा तो है कि आप चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जितने भी सर्वे आते हैं उसमें आपकी पार्टी नंबर 3 पर आती है। कौन सा सर्वे? कौन सा? आपके चैनल ने जो कराया? हाँ, हमारे चैनल में वो फ्रॉड सर्वे था। रुको जरा, सबर करो। आपकी पार्टी के जो नेता हैं, आपकी पार्टी में आप कह रहे हैं कि जितनी भी टिकट दी हैं वो अच्छे लोग को टिकट दी हैं, उसका एक सर्वे मैंने कराया। तो जो 70 लोग टिकट दी है, उनमें से 8 आदमी ऐसे हैं जो बीजेपी के एस्टेब्लिश नेता थे और 7 ऐसे हैं जो कांग्रेस के नेता थे। बिल्कुल थे। तो अगर बीजेपी और कांग्रेस के लोग इतने खराब हैं, तो उनको आपके टिकट या आपकी पार्टी गंगोत्री है, इसमें आके सब साफ हो जाते हैं।
एक मिनट तो आप सुन लीजिए, जिनको सर आपने मैं 2 मिनट तो नहीं, नहीं। मेरे को बात नहीं करने दे रहे। अरे आप ही को तो बात करने दे रहे हो। उत्तम नगर विधानसभा से आपने टिकट दी है देशराज राघव को। इनको माना जाता है राशन माफिया। लोकायुक्त के पास इनकी शिकायत है जिसमें कहा गया कि राशन और मिट्टी के तेल की इनके और इनके परिवार के नाम में 20 दुकानें हैं, मिलावट का सामान बेचते हैं, और ये सारी डिटेल्स आरटीआई से निकाली है। आप चाहें तो मैं आपको पूरी डिटेल दे। देशराज राघव अचल शर्मा के खिलाफ पिछली बार इंडिपेंडेंट काउंसलर का चुनाव लड़े थे। अचल शर्मा बीजेपी का आदमी है उत्तम नगर से। मैं अचल शर्मा के नहीं पूछ रहा, माफिया तो ये है जिनको आपने टिकट दी है। अब मेरे को पूरा करने देंगे, बीच में काटेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल काटूंगा। अगर आप, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इनके खिलाफ लोकायुक्त के पास शिकायत है कि नहीं है? सर मेरे को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप मेरे को जवाब देने देंगे तब तो मैं आप जवाब दे ही नहीं रहे, आप तो दूसरे बात के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर ऐसे तो काम नहीं चल सकता। ऐसे ही काम चलेगा। अब राजनीति में आए तो ऐसे सख्त सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मैं जवाब देने ही अब नहीं आप दे रहे। बच नहीं सकते इन चीजों से। तो बता तो रहा हूँ मैं। अगर आप बेईमान आदमी को टिकट देंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे। तो आप जवाब ही नहीं देने दे रहे, आप सवाल ही पूछ रहे आप हैं। जवाब नहीं दे रहे हैं ना। अब बोलूंगा, बोलिए। मेरे को बात पूरी करनी पड़ेगी बिकॉज वो बात पूरी आप बात बोल नहीं रहे, बार बार घुमा रहे हैं। अचल शर्मा को इन्होंने पिछली बार हराया था। आप अचल शर्मा के पीछे पड़े। आप सर ये अचल शर्मा की कंप्लेंट है। से पूछ रहा हूँ कि देशराज राघव सर ये नहीं है उनके दुकान, एक भी दुकान देशराज राघव के सामने अगर आप साबित कर दें हम अपनी पार्टी बंद कर देंगे। नहीं, ये प्रूफ है, ये आरटीआई से इन्फॉर्मेशन आई है। ये आरटीआई की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये अचल शर्मा की कंप्लेंट की कॉपी है। ये कंप्लेंट की कॉपी, हाँ लोकायुक्त से आई है। अब मैं आपको कंप्लेंट तो कोई भी कर सकता है। अगर आपको आरटीआई का शौक है दिखाइए, ये लीजिए आरटीआई की कॉपी है। इसके बाद भी एक और आरटीआई हुई थी। तो ये आरटीआई दे दिया, इसके बाद एक और आरटीआई होगी। सुनिए तो सही, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। देखिए, आपके समर्थक के बारे में इल्जाम लगे तो आप एक आरटीआई, दूसरी आरटीआई, लोकायुक्त ये सब करने लगते हैं। किसी दूसरे के बारे में इल्जाम लगे, सबूत हो ना हो, आप इल्जाम लगा देते हैं। ये तो छोड़ दीजिए। चलिए, आप कह रहे हैं पहली आरटीआई, दूसरी आरटीआई। इनके पिताजी की डेथ हुए 4.5 साल हो गए। ये मेरे पास बैंक के रिकॉर्ड है, उनकी पेंशन अभी भी उनके नाम में आ रही है। सर इन्होंने देशराज राघव ने बैंक को और डिपार्टमेंट को उसी टाइम लिख दिया था। अगर आप मेरे को बताते, दूध के धुले कि बैंक को कह दिया पिताजी के पेंशन मत देना, मरे हुए 4.5 साल हो गए। कह दिया था सर। मैं आपको चिट्ठी की कॉपी दिखा देता हूँ। ये बैंक की कॉपी है, अभी हाल ही में बैंक में जमा हुए पैसे। हाँ तो सर इसमें से उन्होंने 4 साल पहले जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी बैंक को, वो चिट्ठी की कॉपी अगर आप मेरे को पहले बताते, मैं वो सारे सबूत लेके आ जाता आपके पास। आप पहले आदमी जो मुझे कह रहा है आपकी अदालत में आया तो मुझे पहले बता देता क्या करना है। तो सर अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स है ना, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स आपने भी, मैं आपको काउंटर देने के लिए तैयार हूं। जब लोगों पर इल्जाम लगाए हैं ना, तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट पर लगाए हैं। हाँ तो सर आप तो उसके बाद आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके खिलाफ में, उसको पहले बता देते हैं मैं आपके खिलाफ ये बोलने वाला हूँ, जवाब लेके आ जाओ। ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं तो ठीक है भाई, अब तो जनता तय करेगी। आप जिन उम्मीदवारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन उम्मीदवारों के खिलाफ या उनके भाई के खिलाफ क्रिमिनल केस हैं, उनको उम्मीदवार बनाए रखेंगे या हटा देंगे? सर ये हम सारी जांच कर चुके हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स। आप ही जांच करते हैं, आप ही फैसला करते हैं, आप ही उम्मीदवार बनाते हैं। सर हम लोग आज ये पहली बार ऐसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है।